The sermon, This Day, This Scripture is Fulfilled, was delivered on January 25th, 1965 in Phoenix, Arizona, USA. ये सुसमाचार हमारे प्यारे भाई विलियम मेरियन ब्रनहम द्वारा जनवरी 25, 1965 में फीनिक्स, एरिजोना, यूएसए में प्रचारित किया गया, जिसका हिंदी शीर्षक आज के दिन पवित्र शास्त्र का ये लेख पूरा हुआ है और अंग्रेजी शीर्षक दिस डे दिस स्क्रिप्चर इज फुलफिल्ड है। Thank you, Brother Demas, Brother Shakarian, Brother Carl Williams, and delegates all. आपको धन्यवाद भाई देमास, भाई कार्ल शिकेरियन या देमास शिकेरियन और भाई कार्ल विलियम और सारे प्रतिनिधि। I just think that Brother Plowman here just expressed what I wanted to tonight. That he just taken my speech right from me. मैं उस भाई को धन्यवाद देता हूँ। यहाँ हलवाहा अभी प्रकट किया जो मैंने चाहा आज राती की उसने मेरी बात सीधे सीधे मुझसे ले ली। Because I have enjoyed this, I believe this convention more than any convention I've ever been in. क्योंकि मैंने इसमें आनंद किया, मैं विश्वास करता हूँ कि ये बेदारी किसी भी बेदारी से बढ़कर है जिसमें मैं कभी हुआ। I've never seen in any convention more harmony and such real fellowship and brotherly love. मैंने कभी भी किसी बेदारी में इतनी सहस्वरता नहीं देखी और ऐसी वास्तविक संगति और भाईचारे का प्रेम। Another thing that I've done, I've met many new delegates of heaven, new brethren that I've had the privilege to shake hands with, and talk to. दूसरी चीज जो मैंने की है, मैं बहुत सारे नए स्वर्गीय प्रतिनिधियों से मिला हूँ, नए भाई। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैंने उनसे हाथ मिलाया और बातें की। Just a few nights ago, I was listening to the Baptist brother sitting over there. I can't think of his name, Irvin. अभी कुछ रात्रियों पहले मैं बैप्टिस्ट भाई को सुन रहा था जो वहाँ बैठा है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, इरविन। And he brought a card to me from, I believe it's his aunt that's sitting here tonight. She's held that prayer card for some 20 years. और वो मेरे पास एक कार्ड लाया। मैं विश्वास करता हूँ कि ये उसकी मौसी का है जो आज रात्रि यहाँ पर बैठी हैं। उसने ये कार्ड लगभग 20 वर्षों से रख रखा है। She was brought into the meeting dying with a disease that maybe the doctor could explain what it is. It's something like leprosy, but it isn't leprosy. वो बीमारी से मर रही थी जब उन्हें सभा में लाया गया। वो हो सकता है कि डॉक्टर इसकी व्याख्या कर सके कि ये क्या है। ये कुछ कोड़ के समान था, परंतु कोड़ नहीं था। There's an operation that could cut some kind of a cord up here or something, but she'd be like a plant. She'd have to sit there. आप केवल एक शल्य चिकित्सा थी, वे वहाँ से एक प्रकार की रस्सी काट सकते थे या ऐसे ही कुछ, परंतु वो पेड़ के समान हो जाती है, उसे वहीं पर बैठे रहना पड़ता है। While she was sitting there, perhaps her card not called or nothing, did get in the prayer line. The Holy Spirit directed me to her, and she's back there tonight. Well, we're very thankful for that. जबकि वो वहाँ बैठी हुई थी, संभवतः उनके प्रार्थना पत्र को नहीं बुलाया गया या कुछ नहीं, प्रार्थना पंक्ति में ना आ पाई। पवित्र आत्मा ने मुझे उनकी ओर निर्देशित किया और वो आज रात्रि यहाँ वापस आई हैं, चंगी हैं, और हम इसके लिए बहुत ही धन्यवादित हैं। Well, I think Howard Irvin's over speaking to you, but I think the aunt is here. Maybe we can have her stand up. Would you stand up to the aunt? There she is. Wave your hand. Wave your hand. God bless you, my sister, for your gallant faith in the Son of God. May He keep you well until the time He calls you home, and this mortal will take on immortality. मेरी बहन, परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर के पुत्र में आपके साहसी विश्वास के लिए होने पाए कि वो आपको जब तक घर नहीं बुलाता स्वस्थ रखे, जब ये मरणहार अमरण को पहन लेगा। I'm so thankful for that. I think she held that card for all these years now, and then was brought here to me and showed me tonight. मैं इसके लिए बहुत ही धन्यवादित हूँ, ये सोचकर कि उन्होंने ये प्रार्थना पत्र इन वर्षों में रख रखा और यहाँ मेरे पास लाई हैं और आज रात्रि मुझे दिखाया। You know, I was saying it's like bread upon the water. It returns to you when you try to do something for somebody else. आप जानते हैं, मैं कह रहा था ये उसके समान है जैसे पानी पर रोटी। जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो ये आपके पास वापस आ जाता है। Now,
I have also had the privilege of meeting many of these fine ministers, and I certainly appreciate their fine fellowship, this cooperation. अब मुझे इन बहुत सारे सेवकों से मिलने का भी विशेषाधिकार मिला और निश्चय ही मैं उनकी अच्छी संगति के लिए सराहना करता हूँ, इस सहयोग के लिए। Brother Carl announced me to be back next year, if the Lord is willing, and we're here on earth, and I hope to meet every one of you here next year again. Each one bringing another delegate with him and with sheep. भाई कार्ल ने मेरे लिए अगले वर्ष वापस आने के लिए मुझसे घोषणा की है, यदि प्रभु ने चाहा और हम यहाँ पृथ्वी पर हुए, और भाई मैं अगले वर्ष फिर से सबसे मिलने की आशा करता हूँ और प्रत्येक अपने साथ एक प्रतिनिधि लेकर आए और पत्नी के साथ। Now, there's just one thing that I would like to say a little something about, maybe for just a moment. अब बस मैं एक बात है जो मैं कहना चाहता हूँ, इस विषय में थोड़ा सा कुछ हो सकता है क्षण भर के लिए। Because Dr. Reed is to speak next, and I've come all the way up here tonight. I've got 250 miles, and I have to make this trip to hear Dr. Reed. क्योंकि डॉक्टर रीड को आगे बोलना है और मैं आज रात ही यहाँ पहुँचा हूँ। मैं 250 मील चला हूँ ताकि मैं डॉक्टर रीड को सुनने के लिए ये यात्रा की है। Just something happened a while ago that I would, but Dr. Reed, I drive 1,000 miles to hear him. और अभी कुछ क्षण पहले कुछ घटित हुआ कि मैं परंतु डॉक्टर रीड को उन्हें सुनने के लिए मैं 1000 मील भी गाड़ी चलाता। But something is since I've been here, I would drive 1,000 miles just to hear what I heard a little while ago. Such a wonderful thing. Something that flesh and blood cannot reveal. It takes the Holy Spirit to do it. परंतु कुछ जब से मैं यहाँ पर हूँ, मैं 1000 मील भी गाड़ी चलाता केवल ये सुनने के लिए जो मैंने थोड़ी देर पहले सुना था। बहुत ही आश्चर्यजनक बात, कुछ ऐसा जो मांस और लहू प्रकट नहीं कर सकता था। इसे करने के लिए पवित्र आत्मा लेना होता है। And to see someone who would encourage my life in such a way, and I certainly will be very grateful all the rest of my life. और किसी को देखकर जो मेरे जीवन में इस प्रकार से साहस बंधाता है, और निश्चय ही मैं अपने बाकी जीवन में बहुत ही आभारी रहूंगा। What I wanted to say was, if I ever have to have an operation, call on a medical doctor, you come to me, Dr. Reed, right away. जो मैं कहना चाहता था, यदि मुझे कभी डॉक्टर से शल्य चिकित्सा करानी पड़े तो डॉक्टर रीड, आप मेरे पास जल्दी आ जाना। I can trust a man to operate if I have to have one. Hands that believes in God. That would be the one I want working on me. मैं ऐसे मनुष्य पर शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन के लिए विश्वास कर सकता हूँ। यदि मुझे कभी कराना पड़ा, वे हाथ जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वे ही होंगे जिन्हें मैं चाहता हूँ कि मुझ पर कार्य करें। So I trust I'll never have to have it, but if I do, I want he or a man like him to do the work if he couldn't be there. इसलिए मैं विश्वास करता हूँ कि मुझे ये कभी नहीं कराना पड़ेगा, परंतु यदि मेरा होता है तो मैं चाहूँगा कि वो या उसके समान व्यक्ति कार्य करे यदि वो वहाँ पर नहीं हो सकते हैं। I had something that happened last night, or yesterday afternoon rather, that was really kind of strange to me. And I'll be brief because I don't want to take my brother's time as he's going to speak. मेरे पास पिछली रात घटित होने के लिए कुछ था कि वो या बीते कल दोपहर पश्चात, बल्कि ये मेरे लिए वास्तव में एक अजीब प्रकार की चीज थी और मैं संक्षिप्त करूंगा क्योंकि मैं अपने भाई का समय नहीं लेना चाहता, जैसे कि अब वो बोलने वाला है। But I suppose it's kind of a complimentary to my ministry. I watch little things, just every little thing has a meaning to me. परंतु मैं समझता हूँ कि ये एक प्रकार से मेरी सेवकाई के लिए संपूरक है। मैंने छोटी छोटी बातें देखी हैं, मेरे लिए छोटी छोटी बातों का अर्थ होता है। I don't believe that anything happens to a Christian by chance. I think it's ordained of God, because Jesus said He'd make all things work together for good to them that love Him. मैं ऐसा विश्वास नहीं करता कि एक मसीह के लिए कोई भी चीज अकस्मात घटित हो जाती है। मैं सोचता हूँ कि ये परमेश्वर की ओर से ठहराई हुई होती है, क्योंकि यीशु ने कहा वो सारी बातों को मिलाकर उनके लिए भलाई उत्पन्न करेगा जो उससे प्रेम करते हैं। So therefore, I believe that every little thing in the little humble ministry that He has given me to help you people, to help everyone, and you all are help to me, helping each other to get to glory.
इस प्रकार से इसलिए मैं विश्वास करता हूँ कि हर एक छोटी बात इस छोटी नम्र सेवकाई में जो उसने मुझे दी है कि मैं आप लोगों की सहायता करूं, प्रत्येक की सहायता करूं, कि आप सब मेरी सहायता करें, एक दूसरे की सहायता करते हैं कि महिमा को पहुंचे। In that, every little thing has a meaning to me. But it was hard for me to believe that yesterday afternoon when I lost my text up here. इन सब छोटी छोटी बातों में मेरे लिए कुछ अर्थ होता है, परंतु मेरे लिए बीते कल विश्वास करना कठिन था जब मैंने अपना मूल पाठ यहाँ पर से खो दिया। I tell you, I never was so forgotten in my life. मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपने जीवन में कभी भी इतना दुविधा में नहीं पड़ा। And then my wife gave me a new Bible for Christmas. My old one was just worn out. I've had it almost 20 years now. It was given to me by the Houston Gospel Tabernacle people many years ago when I started out on the campaigns. और तब मेरी पत्नी ने मुझे बड़े दिन पर एक नई बाइबल दी थी। मेरी पुरानी वाली फट गई थी। अब उसे मेरे पास लगभग 20 वर्ष हो गए हैं, जो कि मुझे हॉस्टन गॉस्पल टैबरनेकल के लोगों के द्वारा दी गई थी बहुत वर्षों पहले जब मैंने अभियान आरंभ किए थे। And so I cherish it so much, and the leaves, the pages of crossing the sea and around until it's just dropping out. और इसलिए मैं इसे इतने संजो कर रखता हूँ, और मैं सागर पार करने वाले पर्चे और पन्ने और उसके आसपास जब तक कि मैं ये बाहर निकलकर गिरने नहीं लगे। I pick up a page maybe in Genesis, had to look back over in Deuteronomy somewhere to find it, where they stuck it back in the Bible. और हो सकता था कि मैं उत्पत्ति में एक पृष्ठ लेता और उसे पीछे व्यवस्था विवरण में ढूंढता। आप जानते हैं कि मैंने इसे पीछे बाइबल में कहाँ पाया था। So she got me one for Christmas, and I hate to lay the old book aside. It's been so dear to me. इसलिए बड़े दिन पर वो मेरे लिए एक लाई, और मैं पुरानी पुस्तक को एक और रखना पसंद नहीं करता। ये मुझे बहुत ही प्रिय थी। I said, if I went before Jesus comes, lay it on me. Let it just go down with me. I'll come up with it when we come back. So that's my opinion anyhow. और मैंने कहा, यदि यीशु के आने से पहले मैं चला जाता हूँ तो इसे मेरे ऊपर रख देना और इसे मेरे साथ गाड़ देना। जब हम आएंगे तो मैं इसके साथ आऊंगा, ताकि फिर ये मेरा विचार है जो भी है। I used to tell a little story to hope this is not sacrilegious, but I went to a man told me one time I visited Brother Earl Prickett meeting up in New York, and I met a man. He said, "Say, what do you do with these businessmen being a preacher?" जैसा कि मैं एक छोटी कहानी सुनाया करता हूँ, आशा करता हूँ कि ये अपवित्रकारी या धर्म विरोधी नहीं है, परंतु मैं वहाँ गया। एक बार एक व्यक्ति ने मुझे बताया, मैं विश्वास करता हूँ कि वो भाई अल प्रिकेट थे। न्यूयॉर्क में एक सभा थी और मैं एक व्यक्ति से मिला। उसने कहा, एक प्रचारक होने के नाते तुम इन व्यापारियों के साथ क्या कर रहे हो? I said, "I am a businessman." मैंने कहा, मैं एक व्यापारी हूँ। He said, "What kind of business you're in?" और उसने कहा, आपका किस प्रकार का व्यापार है? I said, "Assurance." Now he thought I said insurance, you see. So I said, "Assurance." मैंने कहा, भरोसा दिलाने का, यानी कि अश्योरेंस। उसने सोचा कि मैंने इंश्योरेंस, बीमा कहा है, आप समझे, इसलिए मैंने कहा विश्वास दिलाने वाले। He said, "Oh, what kind of insurance do you sell?" उसने कहा, ओ, आप किस प्रकार का बीमा बेचते हैं? I said, "Eternal life." मैंने कहा, अनंत जीवन, अनंत। I said, "I don't sell it. I'm just a policy holder myself, and I try to describe it to others." कहा, मैं इसे नहीं बेचता, मेरे पास भी एक बीमा पॉलिसी है, मेरे स्वयं के पास, और मैं दूसरों को इसको लिख कर देता हूँ। Remember a boy I went to school with one time. He was an insurance salesman. मुझे एक लड़का स्मरण है, एक समय मैं उसके साथ विद्यालय गया था और बीमा बेचने वाला था। Now insurance is all right, but I don't have any. अब बीमा ठीक है, परंतु मेरा कोई नहीं है। So he come to my house and he said, "Billy, I'd like to sell you some insurance that I know my brother's sells for Metropolitan." तब इसलिए वो मेरे घर पर आया और उसने कहा, बिली, मैं तुम्हें कुछ बीमा पॉलिसी बेचना चाहता हूँ। कहा, मैं तुम्हारे भाई को जानता हूँ, मेरा भाई महानगर में बेचता है। He said, "I said I'd like to sell you some insurance." I said, "Oh, Wilmer, thank you." उसने कहा, अच्छा। बोला, मैं आपको कुछ बीमा पॉलिसी बेचना चाहता हूँ। मैंने कहा, ओ विल्मर, आपको धन्यवाद।
And he may be your nice brother. He writes the articles in the upper room, this book, the upper room. और आप आज रात्रि वो यहाँ हो सकता है, उसका भाई ध्यान कुटीर अपर रूम के लिए लेख लिखता है, वो अपर रूम पुस्तक। So I said, I have assurance. इसलिए वो मैंने कहा मेरे पास एक भरोसा है, यानी एश्योरेंस। He said, what? उसने कहा क्या? And my wife looked at me as if I was a hypocrite. She said, Billy? और मेरी पत्नी ने मेरी ओर देखा जैसे कि मैं कोई ढोंगी हूँ। उसने और मैंने कहा, इसलिए उसने कहा बिली? I said, yes. I said, I have assurance. और मैंने कहा हाँ, ओ मेरे पास एश्योरेंस यानी भरोसा है। He said, oh, I'm sorry. He said, I heard that you didn't have any insurance. और उसने कहा ओ मुझे खेद है, बोला मुझे नहीं मालूम था, मैंने सुना था कि तुम्हारे पास कोई इंश्योरेंस यानी बीमा नहीं है। And I said, no, I have assurance. And he caught me when I said that. He said, what did you say? I said, assurance. और मैंने कहा नहीं, मेरे पास एश्योरेंस यानी भरोसा है। और उसने मुझे पकड़ लिया। मैंने तब जो कहा वो बोला आपने क्या कहा? मैंने कहा भरोसा यानी एश्योरेंस। And he said, well, what do you mean? I said, blessed assurance. Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. I'm an heir of salvation, purchased of God, born of His Spirit, washed in His blood. और उसने कहा आपका क्या अर्थ है? मैंने कहा धन्य भरोसा, यीशु मेरा है। ओ आने वाली दिव्य महिमा का क्या ही स्वाद है। मैं उद्धार का वारिस हूँ, परमेश्वर द्वारा खरीदा गया, उसके आत्मा से जन्मा, उसके लहू से धोया गया। He said, Billy, you know, I appreciate that. So that's a very good thing. But said, son, that'll not put you out here in the graveyard. I said, but get me out. उसने कहा बिली आप जानते हो कि मैं इसकी सराहना करता हूँ। कहा ये बहुत अच्छी बात है, परंतु कहा पुत्र ये तुम्हें कब्रिस्तान में नहीं पहुँचाएगा। मैंने कहा परंतु मुझे ये वहाँ से निकालेगा। I'm not bothered about getting in, it's getting out. So I think that's the way we feel about it. मैं डरता नहीं, मैं वहाँ पहुँचने के लिए परेशान नहीं हूँ, ये बाहर निकलने के लिए। देखिए, इसलिए मैं सोचता हूँ कि हम इस विषय में ऐसा अनुभव करते हैं। Last evening, I picked up that Bible and I couldn't find that text, and I picked up that new Bible. पिछली सांझ मैंने जब वो नई बाइबल उठाई और मैंने उस मूल पाठ को नहीं ढूंढ सका और मैंने वो नई बाइबल उठाई। I was reading out the old, and I picked up the new one and put it on my arm and run up here, and I turned over to that place, and I thought, well, here, I believe it was St. John 16:21, and it wasn't reading at all. और मैं पुराने वाले से पढ़ रहा था और मैंने नया वाला लिया और अपनी बगल में लगाकर यहाँ आ गया और मैंने उस वाले स्थान को निकाला और मैंने सोचा अच्छा मैं विश्वास करता हूँ कि ये यहाँ यूहन्ना 16:21 में था और पढ़ने में वो बिल्कुल वो नहीं था। I said to Brother Moore, is that where that's at? Yes. मैंने भाई मूर से कहा क्या ये यहीं पर है? जी हाँ। I looked back and it wasn't there. So I thought, well, we got a misplaced page in it. और मैंने पलट कर देखा और ये वहाँ नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि उन्होंने पन्ना लगाने में चूक कर दी पन्नों में। Then my brother here, Brother Stanley, he came over, Bishop Stanley rather, and I don't know what the man meant. It was such a comfort. तब मेरा भाई यहाँ आया, भाई स्टैनले, वो यहाँ आया, बल्कि बिशप स्टैनले। मैं नहीं जानता था कि उस व्यक्ति का क्या अर्थ था, यद्यपि ये इतना तसल्ली देने वाला था। He walked up close to my side and said, "Hold steady, brother. God is maybe going to do something." वो मेरी ओर चलकर मेरी बगल में आया और उसने कहा भाई धैर्य रखें, संभव है परमेश्वर कुछ करने जा रहा है। That just encouraged me to think that he had said, I wonder if he realized he prophesied. But talking to him a few moments ago, just before getting up here, I'm sure he did. समझे? और इससे मेरा साहस बंधा, ये सोचकर कि वो कहेगा कि मुझे आश्चर्य है यदि वो अनुभव करे कि उसने भविष्यवाणी कर दी, परंतु उससे कुछ क्षण पहले बात कर रहा था या आने से थोड़ा सा पहले मुझे निश्चय है कि उसने की थी। So, drawing in my message upon the birth pains and so forth, and my little rude way of doing it about the lily. इसलिए मैं इसे अपने संदेश
जच्चा की पीड़ाओं में लाया था और आदि आदि, और मेरे करने का सीधा सीधा तरीका लिली के विषय में। How it's born down and begotten and comes up and draws up the sun, the dewdrop and so forth, and then the corruption of what it has to die out of, to be born out of, rather, to come out. And I was trying to make an illustration of the church. और ये कैसे जन्म लेती है और उत्पन्न होती है और ऊपर आती है और सूर्य तक पहुंचती है, ओस की बूंद और आदि आदि, और जब तक उसका सड़ना जो कि उसका मर जाना है, बल्कि उसका जन्म लेना कि बाहर निकल कर आए, और मैं कलीसिया का चित्रण करने का यत्न कर रहा था। Just like the doctor here, if he went to treat a patient, we've got doctors today that says you can rub your foot on the back of the heel and heal a cancer on your face. You see? जैसे कि यहाँ डॉक्टर यदि वो रोगी का इलाज करता है, हमारे पास आज डॉक्टर हैं जो कहते हैं आप अपने पैर की एड़ी को पीछे की ओर रगड़ें और अपने मुख पर के कैंसर को चंगा कर लें। आप समझे? But a good doctor wouldn't listen to such a thing as that. He treats the patient according to the book that he's reading on medical research. परंतु एक अच्छा डॉक्टर इस प्रकार की बातों को नहीं सुनेगा। वो रोगी का इलाज उस पुस्तक के अनुसार करेगा जो वो चिकित्सा की खोज पर पढ़ रहा है। And that's what I try to do to treat the patient. When I see the church sick, I don't want to try to tell them they need a new handshake or something like that, a new organization. I have to treat it according to the book that I know it's here. और इसी प्रकार से मैं रोगी के इलाज करने का यत्न करता हूँ। जब मैं कलीसिया को बीमार देखता हूँ, मैं उन्हें ये बताने का यत्न नहीं करता कि उन्हें फिर से हाथ मिलाने की आवश्यकता है या कुछ और, एक नई संस्था। मुझे उनका इलाज पुस्तक के अनुसार करना है जो मैं जानता हूँ। देखा? And so when I see the church look like breaking out with measles, I want to take the very prescription I think is right, and for the measles to get it out of the church. And I see sin breaking out in it the same way. और इस प्रकार मैं देखता हूँ कि कलीसिया लगता है छोटी खसरा से टूट जाएगी। मैं उसी नुस्खे को लेना चाहता हूँ जो मैं सोचता हूँ कि ये ठीक है खसरे के लिए, कलीसिया से बाहर निकलकर। जब मैं देखता हूँ कि इसमें पाप पनप रहा है, ये उसी प्रकार से है। I try to make a comparison with Esau and Jacob, and then bringing times down, and I won't go into that. मैंने एसाव और याकूब की तुलना करने का यत्न किया और तब समयों को कम किया, और मैं उसमें नहीं जाऊंगा। But bring it down to the last part, and my last scripture to use was comparing it, not unscripturally, but as Jesus said it would be. What the main doctor said the condition of the church should be in this last days, it would be a Laodicea, rich, blind, naked, poor church, and it would be compared with the days of Sodom. परंतु इसको मैं अपने वचन के अंतिम भाग में लेकर आऊंगा। परंतु मैं इसको प्रयोग करने के लिए अपने वचन के अंतिम भाग में लेकर आता हूँ। तुलना कर रहा था, वचन से अलग नहीं, परंतु जैसा यीशु मसीह ने कहा कि ये होगा। मुख्य डॉक्टर ने क्या कहा है कि कलीसिया की स्थिति क्या होगी इन अंतिम दिनों में। ये लुदीकिया की होगी, धनी, अंधी, नंगी, निर्धन कलीसिया, और इसकी तुलना सदोम के दिनों से होगी। Now we know that's the truth. If you notice it historically, he brought in the days of Noah first, and then the days of Sodom, and that's just the way it's traveled, just the same way. अब हम जानते हैं कि ये सत्य है। यदि आप इसे ऐतिहासिक रूप में देखें, पहले वो नूह के दिनों को लाया और तब सादोम के दिनों को, और इसी प्रकार से उसने यात्रा की, उसी प्रकार से। History has many times repeats itself. History does, and so does promises of the Bible. और इतिहास ने स्वयं को बहुत बार दोहराया है, इतिहास करता है, और ऐसी ही बाइबल की प्रतिज्ञाएं। For instance, like in Matthew 3, where it said, "Out of Egypt I've called my son." Now, if you run the reference on that, it was Jacob, his son, he called out of Egypt. That was his lesser son. उदाहरण के लिए जैसे कि मत्ती 3, जहाँ ये कहा गया है, अपने पुत्र को मैंने मिस्र से बुलाया। अब यदि आप इसके संदर्भ को इस पर चलाएं, ये याकूब था, उसका पुत्र, उसने मिस्र से, वो उसका लगभग पुत्र था। But his great son, Jesus, was called out of Egypt too. So it had a compound answer. परंतु उसका महान पुत्र यीशु को भी मिस्र से बुलाया गया, इसलिए ये इसका संयुक्त उत्तर था। So
And seeing as they went along talking about that, and then I brought my thoughts of that, and I walked out off the platform and went out. इसलिए और जैसे कि देख रहे हैं वे इस विषय में 7 बातें करते हुए गए और तब मैंने इस पर अपने विचार लिए और मैं इससे बाहर चला गया, प्रचार मंच से हटा और चला गया। My children going home wanted to stop out here somewhere to get a sandwich, and I went in. The wife said, "Billy, I was so nervous I didn't know what to do." So I gave you that Bible. मेरे बालक घर जा रहे थे, यहीं कहीं पर ठहरना चाहते थे कि सैंडविच लें, और मैं अंदर गया। पत्नी ने कहा, बिली मैं इतनी अधीर थी, मैं नहीं समझ सकी कि क्या करूं। कहा, मैंने आपको वो बाइबल दी थी। I said, "You never wrote it, and you never put it together, honey." मैंने कहा, तुमने इसे कभी नहीं लिखा और तुमने इसे एक साथ नहीं जोड़ा, प्रिय। She said, "But just to think, I give you a Bible that had a flaw in it." उसने कहा, परंतु ये सोचकर मैंने आपको एक बाइबल दी और उसमें कमी थी। I said, "Well, maybe it wasn't." मैंने कहा, भाई हो सकता है ये नहीं था। And so one of the children picked it up, and we peeled the pages, and all looked all right, but right down at the bottom, it was 2 pages sticking together, see? And the 16th chapter was on this side, and then the continuation of the 16th chapter come up on the other side. और इसलिए एक बालक ने इसे उठाया और हम इसके प्रश्नों को अनुभव करते। नहीं, ये ठीक दिखाई पड़ी, परंतु ठीक नीचे की ओर ये दोनों पृष्ठ आपस में चिपके हुए थे। देखिए, और 16वां अध्याय इस ओर से था और तब 16वां अध्याय लगातार चलकर दूसरी ओर आ गया। And the 7th he started on it. See, just perfectly exactly the same across in that Indian paper, real thin, sticking together. And I was reading out the 17th chapter all the time instead of the 16th chapter. और 17वां अध्याय आरंभ हो गया। देखिए, ये बिल्कुल ठीक वहीं उस पार, और वो इंडिया कागज बहुत ही पतला आपस में चिपका हुआ था, और मैं 17वें अध्याय को पढ़ रहा था सारे समय, बजाय 16वें अध्याय के। I thought, God, why did you do that? Why would there be such a thing now? That's me feeling in order to see what it was all about, because I think nothing happens by chance. और मैंने सोचा, परमेश्वर आपने ये क्यों किया? अब वहाँ पर ऐसी बात क्यों हुई? मैं ये अनुभव कर रहा था, आप जानते हैं, ये देखते हुए कि ये सब क्या था, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि कुछ भी अचानक नहीं घटता। I was thinking about the comfort of this brother here coming tell me, hold steady. Him being a priest, hold steady. Maybe God is going to do something or something in that manner. And I thought, how could that be? और मैं यहाँ इस भाई की तसल्ली के विषय में सोच रहा था। आते हुए उसने मुझसे कहा, धैर्य रखो। वो एक पादरी होने के नाते धैर्य रखो, हो सकता है परमेश्वर कुछ करने जा रहा हो या कुछ इसी प्रकार से। और मैंने सोचा, ये कैसे हो सकता है? And then sitting there like a thunderbolt out of heaven, it came to me. और तब वहाँ बैठे हुए स्वर्ग के धमाके के समान ये मेरे पास आया। This might not make sense to you, but it does to me. See. अब ये तुम्हारे लिए कोई अर्थ नहीं निकलता, परंतु ये मेरे लिए निकलता है। देखा? I remember in Luke the 4th chapter that Jesus entered the synagogue at Nazareth, where he was brought up at, as his custom was to go into the church on the synagogue on the Sabbath. मुझे स्मरण है लूका के 4थे अध्याय में कि यीशु नासरत के आराधनालय में गया, जहां वो पाला पोसा गया था, जैसे कि उनकी रीति सबत के दिन कलीसिया आराधनालय में जाने की थी। And when he did, we noticed there that the priest gave him the Bible, the scroll. Jesus, looking through the scroll, found a certain place, Isaiah 61, and he read the scripture. और जब वो गया, हम वहाँ देखते हैं कि याजक ने उसे बाइबल यानी कुंडलित को दिया। यीशु उस कुंडलित को देख रहा था और एक विशेष स्थान यशाया 61 को ढूंढा और उसने पवित्र लेख को पढ़ा। Then he handed the Bible back to the minister, and then as he turned the audience, all eyes was up on him. And he said, "This day, this scripture is fulfilled." फिर उसने बाइबल वापस सेवक को दे दी, और जैसे कि वो सभा की ओर घूमा तो सारी आंखें उस पर लगी हुई थीं, और उसने कहा, आज के दिन ये pavitra लेख पूरा हुआ। And we know how peculiar that scripture reading was, because he just took a portion of the first and second verses of Isaiah 61, 1 and 2.
और हम जानते हैं कि इस पवित्र लेख को पढ़ना कितना असाधारण था, क्योंकि उसने केवल पहले और दूसरे पद का एक भाग पढ़ा, यशाया 61:1 और 2। But he read down this far, where the Spirit of the Lord is upon me, to bind up the brokenhearted and to heal the sick and to open the blinded eyes and to preach the acceptable year of the Lord. And then he stopped. परंतु उसने यहाँ तक पढ़ा जहाँ प्रभु का आत्मा मुझ पर है कि टूटे हुए हृदयों को जोड़ूं और बीमार को चंगा कर दूं और अंधी आंखों को खोलूं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं, और तब वो रुक गया। For the next was to bring judgment. That would apply to his second coming, not his first coming. क्योंकि अगला न्याय का आना था, ये उसके दूसरे आगमन पर लागू होगा, पहले वाले आगमन पर नहीं। And he stopped and turned around and said, "This day, this scripture is fulfilled." और वो रुका और घूमा और कहा, आज के दिन ये पवित्र लेख पूरा हुआ। How direct that was! What a statement it was to the teachers and to the people that were present, that he could make this plain to the people. This day, this scripture is fulfilled. ये कितना सीधा था, और ये कि क्या ही बयान था शिक्षकों के लिए और उन लोगों के लिए जो उपस्थित थे, कि वो इसे लोगों को स्पष्ट कर सका। आज के दिन ये लेख पूरा हुआ। For here he was, the Messiah, yet they didn't believe it. Here he was, the anointed one for that hour. क्योंकि यहाँ वो मसीहा था, तब भी उन्होंने इसका विश्वास नहीं किया। वो यहाँ पर था, उस घड़ी के लिए चुना हुआ अभिषिक्त। Every bit of his ministry from his birth up had proved to be what he was. And yet they could not believe it. उसकी सेवकाई की हर एक छोटी घटना उसके जन्म से, उससे ये सिद्ध हुआ कि वो कौन था, और तब भी वे इसका विश्वास नहीं कर सके। What a statement! But he could say today, and if a person opened up their eyes, they could have known what day that they were living in, for that was his hour. For he was right there doing exactly what the scriptures, all the prophets had said had happened in that day. क्या ही कथन है, परंतु आज वो ये कह सकता है, और यदि एक व्यक्ति उनकी आंखें खोल दे, वे जान सकते थे, जानते कि वे किस दिन में जी रहे हैं, क्योंकि वो उसका समय था, क्योंकि वो ठीक उन्हीं कार्यों को कर रहा था जो पवित्र लेख सारे भविष्यद्वक्ताओं ने कहा था कि ये उस दिन में घटित होगा। Here he was doing exactly what God had prophesied would happen. यहाँ वो ठीक उन्हीं कार्यों को कर रहा था जिनकी परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी कि ये घटित होंगे। How did they miss seeing it? They should have known right quick, seeing what his ministry was, there's the Messiah. वे कैसे इसे देखने में चूक गए? उन्हें एकदम मालूम हो जाना चाहिए था, देखते हुए कि उसकी सेवकाई क्या थी, वहाँ मसीहा है। They would have known it, because he said the scripture is fulfilled. वे इसे जान जाते, क्योंकि उसने कहा यह पवित्र लेख पूरा हुआ। I think of today, and notice what that was, as the priest gave the word over. The word was read and handed back to the priest. मैं आज के विषय में सोचता हूँ, और ध्यान दें, वो क्या था जो एक याजक के समान वचन दिया, वचन पढ़ा गया, वापस याजक को लौटा दिया गया। And the last quotation out of my text that I had, and my scriptures wrote down, was St. Luke 17:30, where Jesus, referring back to this day that we're living in, rich Laodicea age, and yet rotten in politics, church politics, and national politics, just as rotten as it could be. और मेरे मूल पाठ में से अंतिम संदर्भ जो मेरे पास था और मेरे लेख लिखे हुए थे, लूका 17:30, जहाँ यीशु इन दिनों का जिनमें वो हम रह रहे हैं उल्लेख कर रहा था, धनी लौदीकिया युग और तो भी राजनीति में सड़ाहट, कलीसिया की राजनीति और राष्ट्रीय राजनीति उतनी ही सड़ी हुई है जितनी हो सकती है। And then he said, as it was in the days of Lot,
so shall it be in the coming in time. और तब उसने कहा, जैसे कि लूत के दिनों में था, ऐसा ही ये आने वाले अंत समय में होगा। Notice what he said there. In the day that the Son of Man will be revealed. ध्यान दें, उसने वहाँ क्या कहा? उस दिन में जब मनुष्य का पुत्र प्रकट होगा। In the days that the Son of Man will be revealed. I want to draw your attention. देखिए, उन दिनों में जब मनुष्य का पुत्र प्रकट होगा, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। See, he came in three names. He came as Son of Man, which was prophet. And that's what he did. He proved his ministry by being a prophet. We all know that. Every one of us knows it. देखिए, वो 3 नामों में आया। वो एक मनुष्य के पुत्र के समान आया, जो कि भविष्यद्वक्ता था, और उसने वही किया। उसने अपनी सेवकाई को सिद्ध किया। एक भविष्यद्वक्ता होने के द्वारा हम ये सब जानते हैं। हमें से हर एक ये जानता है। He never said he was the Son of God. He said he was the Son of Man. उसने कभी नहीं कहा कि वो परमेश्वर का पुत्र है। उसने कहा वो मनुष्य का पुत्र था। Now today he is the Son of God, which he returned back, and now he's in the form of the Holy Ghost, the unseen person, but yet God, the Son of God. अब आज वो परमेश्वर का पुत्र है, जो कि वो वापस आया है, और अब वो पवित्र आत्मा के रूप में है, न दिखाई देने वाला व्यक्ति, परंतु फिर भी परमेश्वर का पुत्र। In the millennium, he sits upon his Father's throne, which he'll be Son of David. सहस्र शताब्दी में वो अपने पिता के सिंहासन पर बैठता है, जबकि वो दाऊद का पुत्र होगा। He revealed himself first as Son of Man, a prophet. This age, to the church age, Son of Man, or Son of God. And in the other age, Son of David. 3 sons. उसने स्वयं को पहले एक मनुष्य के पुत्र के रूप में प्रकट किया, एक भविष्यद्वक्ता, इस युग में कलीसियाई युग में होते हुए मनुष्य का पुत्र यानी परमेश्वर का पुत्र, और दूसरे युग में दाऊद का पुत्र, 3 पुत्र। But you notice here, he said, at the ending of the church age, it had gotten such a mess, till he would be revealed again as Son of Man. When the Son of Man is being revealed. परंतु आप यहाँ ध्यान दें, उसने कलीसियाई युग की समाप्ति की ओर कहा कि इसमें इतनी गड़बड़ी उत्पन्न होगी जब तक कि वो स्वयं को फिर से मनुष्य के पुत्र के रूप में प्रकट करेगा, जब मनुष्य का पुत्र प्रकट किया जा रहा होगा। How appropriate was that mix up yesterday, and I hope you don't miss it. वो कितना उपयुक्त था जो कल गड़बड़ हो गया, और मैं आशा करता हूँ कि आप इसमें चूकते नहीं हैं। We have had the revelation of Son of God, but the last promise that Abraham had before the Son was made or brought into existence, the one that he was been promised. हमारे पास परमेश्वर के पुत्र का प्रकाशन था, परंतु अंतिम प्रतिज्ञा जो अब्राहम के पास थी, इससे पहले कि पुत्र बनाया गया था या प्रकट रूप में लाया जाता, वही जिसकी उसने प्रतिज्ञा की थी। Before the promised Son showed up, God manifested Himself there at Sodom as a prophet, being a man in flesh. God. इससे पहले कि प्रतिज्ञा का पुत्र दर्शाया गया, परमेश्वर ने स्वयं को वहाँ सादोम में एक भविष्यद्वक्ता के समान देह में एक मनुष्य होने के द्वारा प्रकट किया। परमेश्वर Elohim, as I heard someone speaking a while ago, which the Godhead bodily was in him. He was the fullness. Elohim is the fullness of the Godhead bodily. एलोहिम, थोड़ी देर पहले कोई बोल रहा था, मैंने सुना, जो कि परमेश्वरत्व देह में उसके अंदर था, वो परिपूर्णता था। एलोहिम परमेश्वरत्व की परिपूर्णता देह संबंधी। And we noticed there when Abraham saw him coming, he said, "My Lord." There were 3 of them. और हम वहाँ ध्यान देते हैं, जब लूत ने देखा, जब अब्राहम ने उसे आते हुए देखा, उसने कहा, मेरे प्रभु। वहाँ वे 3 थे। And down in Sodom, Lot saw 2 and said, "My Lord." Lack of revelation. और नीचे सादोम में लूत ने 2 को देखा और कहा, मेरे प्रभुओ, प्रकाशन की कमी। So notice what taken place here. When he come up high, he made himself known. इसलिए अब ध्यान दें, वहाँ क्या हुआ, जब वो आया तो उसने अपने आप को कैसे प्रकट किया। Could I not say this if I'd just been on my toes? The brother prophesied when he said to me what he did. क्या हम नहीं कर सकते? क्या मैं ये नहीं कह सकता
यदि ये ठीक मेरी नाक के सामने हो रहा हो। देखिए, भाई ने भविष्यवाणी की जब उसने मुझसे कहा, उसने क्या किया। This day, watch what he did right after the reading of that scripture. In the days when the Son of Man, not a man, not a human being, the Son of Man will reveal himself among his people again. आज के दिन ध्यान दें, पवित्र लेख के पढ़ने के पश्चात उसने क्या किया। मनुष्य के पुत्र के दिनों में एक मनुष्य नहीं, न कि एक मनुष्य जाति, विशेष मनुष्य का पुत्र स्वयं को अपने लोगों के मध्य में फिर से प्रकट करेगा। This day, this promise of this hour that we're now living in is fulfilled before our very eyes. आज के दिन ये प्रतिज्ञा इस घड़ी की, अब जिसमें हम जी रहे हैं, सबकी आंखों के सामने पूरी हो गई। He turned immediately to the congregation and 10 or 12, whatever people it was out there unknowing, he did the very same thing he did at Sodom. वो तुरंत सभा की ओर घूमा और वहाँ 10 या 12 जितने भी लोग वहाँ पर थे अपरिचित, उसने वही चीज करी जो उसने सादोम में किया। This day has this scripture been made manifest before you. It's been made true before you. आज के दिन क्या ये पवित्र लेख आपके सामने प्रकट हुआ, ये आपके सामने सत्य बना। Then my brother, sister, delegates, ministers, whatever we are here, children of God, how close are we to His coming then? तो फिर मेरे भाई बहन, प्रतिनिधियों, सेवकों, हम जो भी यहाँ पर हैं, परमेश्वर के बालक, तो हम उसके आगमन के कितने समीप हैं। If we're now seeing the scripture that He promised just before the fire fell in Sodom to burn it up and liken this day to it, and seeing that scripture right before our eyes being fulfilled, how close are we to the coming of the Son of God then? यदि हम अब उस पवित्र लेख को देख रहे हैं, उससे थोड़ा पहले अब आग सादोम में गिरी और उसे भस्म कर दिया, और आज के दिन के समान, और ये पवित्र लेख को आंखों के सामने पूरा होते हुए देखते हैं, तो हम परमेश्वर के पुत्र के आगमन के कितने समीप हैं। How close is the manifestation of the scriptures like He did through Abraham, bringing the church up in type, which He was the promise to the church. पवित्र वचन का प्रकटीकरण कितना समीप है, जैसे कि उसने अब्राहम के द्वारा किया, कलीसिया को प्रतीक में से होते हुए ला रहा है, जो कि उसने कलीसिया से प्रतिज्ञा की है। And now we find out Abraham's natural seed, how they failed, but the royal seed of Abraham, which is by faith in the promised word, is now being manifested on the earth today. और अब हम अब्राहम के शारीरिक वंश को पाते हैं कि वे कैसे असफल हो गए, परंतु अब्राहम का शाही वंश जो प्रतिज्ञा किए हुए वचन पर विश्वास करने के द्वारा है, अब आज इस पृथ्वी पर प्रकट हो रहा है। We are at the end time, my brothers, sisters. We are at the end. Right there. हम अंत के समय में हैं, मेरे भाई बहन, हम अंत के समय में हैं। And we have not one other type. I have to type scriptures because I don't have an education enough to bring out words and things. I make a type. और हमारे पास दूसरा नमूना नहीं है। मेरे पास पवित्र वचन का नमूना है, क्योंकि मेरे पास पर्याप्त शिक्षा नहीं कि शब्दों और बातों को लाऊं। मैं एक नमूना बनाता हूँ। But if I see in the shadows, if I never had seen my hand and see the shadow, I know I had 5 fingers. परंतु यदि मैं प्रति छायाओं में देखता हूँ, यदि मैंने अपना हाथ कभी ना देखा होता और छाया देखता, तो मैं जानता कि मेरे पास 5 उंगलियां हैं। And that's why you have to watch the scripture types of the Old Testament. What does it do? It foreshadows this. और इसी प्रकार से आपको पवित्र वचन के पुराने नियम में नमूनों का देखना है। ये क्या करता है? ये इसकी पहली छाया को दिखाता है। And Jesus said that Sodom was the foreshadow of the end time now. और यीशु ने कहा सादोम अंत समय की पहले से आई हुई छाया है। And the very scriptures that was promised to Sodom, the very scriptures that was taking place to Sodom that Jesus said would repeat itself again in this day, it's made known right before us today. और वही पवित्र वचन जिसकी सादोम से प्रतिज्ञा की गई थी, और वही लेख जो सादोम में घटित हो रहा था, जिसको कि यीशु ने कहा, ये स्वयं को फिर से दोहराएगा इस दिन में, ये ठीक आज हमारे सामने जाना जाएगा। God bless you. Don't miss it.
And if I don't see you here next year, when you climb the golden stairs, I hope to meet you up there. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे, इसमें चूके ना। यदि मैं आपको यहाँ अगले वर्ष न देखूं, जब वे उन सुनहरी सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि आपसे वहाँ मिलूंगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। Father, we are, according to the Scriptures, we're seeing manifested before us the last sign and type. The words of Jesus Christ said this is so. पिता, हम लोग वचन के अनुसार हम अपने अंतिम चिन्ह और नमूने को प्रकट होते हुए देखते हैं। यीशु मसीह के शब्दों ने ऐसा कहा है। Just as it was at Sodom, we see the world in its condition, we see the church in its condition, we see the elect being called out of every denomination. The life that's in those places moving out now to take the form of the sea. जैसा कि ये सादोम में था, हम संसार की इस स्थिति को देखते हैं। हम कलीसिया को उस स्थिति में देखते हैं। हम चुने हुओं को हर नामधारी कलीसिया में से बाहर बुलाया हुआ देखते हैं। जीवन जो उन स्थानों में है, बाहर निकलकर बीज का रूप धारण कर रहा है। We pray, Heavenly Father, that we'll awaken it quickly. As the brother just said now, he's seen before his face. And when he had his eyes closed, just masses going before him. Oh God, we feel that there's masses untouched yet. हम प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता कि हम एकदम जाग उठेंगे। जैसा कि अभी एक भाई ने कहा, उसने अपने सामने देखा, और जब उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी, उसके सामने से आम जनता जा रही थी। ओ परमेश्वर, हम अनुभव करते हैं कि अब भी भीड़ की भीड़ इसके संपर्क में नहीं है। Help us, dear God. May we go from this convention with such a warning in our heart, knowing that this day the Scripture is fulfilled. In Jesus' name, amen. प्रिय परमेश्वर होने पाए कि हम इस बेदारी सभा से अपने हृदय में एक ऐसी चेतावनी के साथ जाएं, ये जानते हुए कि आज के दिन पवित्र लेख पूरा हुआ। यीशु के नाम में आमीन। Hallelujah. Our editor, Jerry Jensen, would you come up here? His mother-in-law is unconscious right now. He just got news. And they're ministers of the gospel, Foursquare Ministries. Would we just, I know he's very heavy-hearted and just... Churches now. Where they're here? No, they're in Los Angeles. Nicole. Distance is no difference to God. He's omnipresent. He has to be God. अभी अभी मिला है, अभी अभी सुना, अभी क्या वे यहाँ हैं? परमेश्वर के लिए दूरी कोई अर्थ नहीं रखती। वो सर्वव्यापी है, उसे परमेश्वर होने के लिए। Some of the greatest things that I've known of being done in my own humble ministry is by telephone or someone calling in. Great things taking place. कुछ ऐसी महान बातें जो मैं जानता हूँ कि की गई हैं, मेरी नम्र सेवकाई में फोन के द्वारा की गई हैं, या कोई बुला रहा है। महान बातें घटित हुई हैं। Let us agree together that God will heal this people that's sick. आइए हम एक साथ इस बात में सहमत हों कि परमेश्वर इन लोगों को चंगा करेगा जो बीमार हैं। Dear Heavenly Father, we bring them into your presence by prayer. प्रिय स्वर्गीय पिता, हम इन्हें आपकी उपस्थिति में लाते हैं प्रार्थना के द्वारा। We know that one night there was an apostle that was shut off from all activities and he was in a jail and he was going to be beheaded the next day. हम जानते हैं कि एक रात्रि एक चेला था जिसके अपने सारे कार्यक्रम बंद कर दिए गए थे। वो जेल में था और अगले दिन उसका सिर काटा जाना था। Down at John Mark's house they had a prayer meeting and right in those inner cells there came that same pillar of fire that followed the children of Israel, or the children of Israel followed it through the wilderness. वहाँ यूहन्ना मरकुस के घर उनकी एक प्रार्थना सभा थी और ठीक वहाँ भीतर वाले कमरे में वहाँ वही अग्नि स्तंभ आया जो इजराइल के बालकों के पीछे पीछे चला था, यानी इजराइल के बालकों ने इसका अनुकरण किया था उस सारे जंगल में से होते हुए।
came right in because of that prayer meeting and opened every door and brought the apostle out on the street again free to minister. सीधा भीतर भीतर आया उस प्रार्थना सभा के कारण और सारे दरवाजे खुल गए और चेले को बाहर फिर से गली में ले आया, सेवक को उस सेवकाई के लिए स्वतंत्र कर दिया। We understand that these ministers, missionary people is bound in now. They're even in a coma. हम समझते हैं कि ये सेवकगण मिशनरी लोग अब बंधन में हैं, वे यहाँ तक कि अवचेतन अवस्था में हैं। Lord, you are the same yesterday, today, and forever. Hear our prayer tonight, O God. प्रभु आप कल, आज और सर्वदा एक से हैं। आज रात्रि हमारी प्रार्थना सुन ले, ओ परमेश्वर। You said when you pray, believe that you receive what you ask for. It shall be given. आपने कहा जब तुम प्रार्थना करते हो तो विश्वास कर लो कि जो तुमने मांगा पा लिया है तो तुम्हें दे दिया जाएगा। Lord, we believe and pray that in Jesus' name that you'll heal them, Lord, for your glory. It's been said, been asked. Now let it be done. Amen. प्रभु हम यीशु के नाम में विश्वास और प्रार्थना करते हैं कि आप इन्हें चंगा करेंगे। प्रभु अपनी महिमा के लिए ये कहा गया और मांगा गया है, अब इसे होने दें। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। टेड, आप उसके साथ विश्वास करें। भाई देमास। You recognize that fellow? No, sir. A lot of change since those days, brother. Howard. नहीं श्रीमान, उन दिनों से भी भाई बहुत बदलाव है। भाई He is a very handsome fellow. You're still handsome, Brother Branham. That's a nice picture. Yes. And we had your aunt to stand a moment ago too, and maybe you'd like to say a word, Howard. Man, they left out. We all appreciate Brother Shakarian. वे पुरुष चले गए। हम सब भाई शिकरियन की सराहना करते हैं। No, we ever. क्या नहीं करते? हम में से प्रत्येक